इतना अच्छा लगा कि अक्रॉस ऑल एज ग्रुप सब उस गाने को उसी प्यार से गा रहे, उसी फेमिलियरिटी से गा रहे हैं। 100,000 मिले या 100 मिलियन मिले, गाना अच्छा होना चाहिए। अच्छा। एक इवेंट पे मैं थी जहाँ पे बादशाह भी थे और he caught hold of me, he was like आज ही ये गाना रिकॉर्ड करना है। Hi, this is Nikita Gandhi and you're watching me on Peeping Moon. Hello everyone, welcome to Peeping Moon, and today we are in conversation with Nikita Gandhi. Firstly, how excited are you for Ishq Vishk Rebound? You have got a big project, of course you have worked with many big projects, but Ishq Vishk Rebound has a connection with the original Ishq Vishk, which released in 2003. Yeah, I mean, एक तो I'm very excited that एक ही एल्बम में दो गाने हैं और two big songs which are trending. Doing all the songs are trending actually in the album, which is very exciting. And this is my first, I think, film song with Rochak. हमने एक सिंगल किया था इसके पहले, which did really well and was a wonderful video, which we actually shot together also. So this was the first time एक film गाना रोचक के साथ release कर रहा है, and I really had a blast working on it, both the song with Rochak and the song with Badshah. Okay, and the movie has remix. Okay, so do you carry up a baggage? Like, do you have a pressure ki nahi, I have to prove yourself when it is a remake? No, I mean, I choose not to take any such pressure. मुझे लगता है कि सबसे important चीज़ ये है कि you give your sort of 100% to everything that you do. So whether or not people like it is, I think, up to people. And but मुझे actually pressure से ज़्यादा I was excited because I got to sing Ishq Vishk Pyar Vyar, like the iconic song that we've grown up listening to, with the OG singer Sonu Nigam ji, who's singing it 20 years later. So I think it's such a cool thing कि when you get to do such stuff, I think the focus becomes on being excited than, you know, on being nervous about the songs. Yeah, Ishq Vishk has like बहुत पुराना connection है Ishq Vishk का, like अभी तक हम सुनते आ रहे हैं शाहिद कपूर अमृता राव के इस गाने, and we still go like इश्क विश्क प्यार व्यार, we still enjoy it. And now this remake, this song which we have in Ishq Vishk Rebound, कुछ पुराना नया नहीं लग रहा है, it has connection. So आपने वो that was a conscious decision of you and the makers कि नहीं, उसको एकदम connect रखना है from the original, the OG song. I feel this is probably a question for Rochak because but I think मतलब on his behalf मैं बोल सकती हूँ कि I think he's done a fabulous job retaining that masala, because I think इस film में like इस franchise नहीं कह सकते but generally इश्क विश्क प्यार मतलब जो फिल्म पहले रहा, जो गाने अब हो रहे हैं, जो फिल्म अभी बना, आई थिंक इसमें एक चीज मैं देख पा रही हूँ कि इट्स दैट मसाला इज देयर बिकॉज इन द ओजी सॉन्ग्स देयर वाज अ लॉट ऑफ दैट स्पंक, यू नो, दैट there's this vibe which is still there in the new stuff, which is I think phenomenally done. And personally मुझे कुछ अलग नहीं करना पड़ा. I think I just got to be myself and just have fun. I think most important चीज ये था कि मजा आना चाहिए गा के और सुन के. Honestly, मैंने जब ये लेटेस्ट वर्जन सुना, मुझे ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं कि क्या किया या दिस इज अ न्यू सॉन्ग. मेरी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई. I went back to 2003, मतलब that is one of my favorite movies. And वो song जो मैं पहले सुनती थी, अभी भी जो सुना, the track is same. It is refreshing now. And talking about this movie, Ishq Vishk Rebound and remakes. So, you know, you must be aware आजकल काफी remakes हो रहे हैं. Although ये नया नहीं है, पहले से हम करते आ रहे हैं, remakes पहले भी हुए हैं. This is not new. But आजकल कुछ ज्यादा है, like every other film में एक नया song है जो कि remake है 90s song का, जो कि हम आज भी सुनते हैं. We still groove on it and enjoy करते हैं. But कुछ song ऐसे भी होते हैं जो पसंद नहीं आते हैं. हालांकि बाकी पसंद भी आते हैं, कुछ कुछ पसंद नहीं आते. बट आप एक यंग जनरेशन के सिंगर हो, तो आपका क्या कहना है फॉर रीमेक ऑफ सॉन्ग्स?
आपने तो एक इम्पोर्टेंट चीज बोल ही दिया कि ये बहुत साल से चल रहा है. इट्स नॉट लाइक कि अभी अचानक से सारे गाने रीमेक हो रहे हैं, पहले भी होते थे. पहले भी होते थे. और आई थिंक क्या दो चीज मुझे लगता है. एक कि यू नो दैट इतने सारे गाने रिलीज होते हैं. आई थिंक फिल्म मेकर्स पे, लेबल्स पे एक प्रेशर भी आ जाता है दैट हाउ डू यू ब्रेक द क्लटर, क्योंकि इतने सारे गाने, इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है सबको. सो आई थिंक एक चीज है जो ऑफकोर्स एक गाने का एक रिकॉल जब होता है ऑलरेडी, तो उसको क्लटर ब्रेक करने में बहुत इजी होता है. सो आई थिंक दैट्स अ फैबुलस mindset to remake music and to re-release music, क्योंकि एक नए जनरेशन को भी एक सेलिब्रेटेड गाने को सुनने का मौका मिल रहा है. यू नो इट्स सो कूल व्हेन लाइक आई हैव हैड सो मेनी कॉन्सर्ट्स जहाँ पे रिसेंटली मेरा एक कॉन्सर्ट रहा था जहाँ पे यू नो आई हैड इट वाज अ टिकेटेड शो जहाँ पे there were people who there were parents with their kids, you know, so there were people who were probably in their 60s, there were people who were 10 also in the same audience. And मेरा एक गाना है ओ सजना जिसमें दिल क्या करे का एक लाइन है. सो मैं वो परफॉर्म कर रही थी and I could see everybody singing it, you know, across all age groups. And because the new generation has also heard it because of this song. The older generation obviously knows दिल क्या करे. तो ये जो एक unity सा बन गया था, I think that is what makes a remake done right special. क्योंकि इतना अच्छा लगा कि across all age groups सब उस गाने को उसी प्यार से गा रहे हैं, उसी familiarity से गा रहे हैं, और उनके बीच में भी एक गैप ब्रिज हो रहा है, राइट. सो आई थिंक इस सुंदरता को अगर ये है एट द कोर ऑफ अ रीमेक कि हम एक गाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे के जनरेशन को सुनाना चाहते हैं, इफ दैट इज द इंटेंट, आई थिंक इट्स वंडरफुल. So yeah. So that is the right idea which we have just said, कि हम सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं. एंड वो एक सॉन्ग जो बहुत पहले का है वो आज भी सबको कनेक्ट कर रहा है एक साथ. ठीक है. टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, as you are a singer and बहुत सालों से आपको सिंगिंग कर रहे हैं, आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है. आजकल काफी इंडिपेंडेंट सिंगर्स ग्रो हो रहे हैं, राइट, बी इट इन इंस्टाग्राम विल से. सो काफी इंडिपेंडेंट सिंगर्स अपना एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे. सो डू यू थिंक दे आर बेटर एट इंस्टाग्राम और दे शुड गेट अ चांस इन बॉलीवुड, और will their music fit in Bollywood? Like, what do you think on your experience? Or we can collaborate together, the Bollywood and the independent singers. That can be done? What are your thoughts? I think it's very subjective. It depends on the singer, depends on how talented the person is. Just because somebody is singing on Instagram doesn't mean they're a certain type of singer. मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपना म्यूजिक अपने कवर्स बनाते हैं and stuff. So there are some people who are very amateur, some people who are extremely good. तो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम सुनने को मिलता है. So I think I can't really answer this question to be honest, because you know, it depends completely on who we're talking about. So कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको लगता है, जैसे आजकल बहुत सॉन्ग्स हैं, चोर, अलग आसमान, सवेरा एंड मोर, देयर आर मोर. सो डू यू थिंक कोई ऐसा सॉन्ग आपको अभी तक लगा है which you would like to bring up in movies with the original singer? Any song that you have in mind? I just did. No, I didn't understand the question. I'm talking about the songs जो हम इंडिपेंडेंट सिंगर्स की बात कर रहे थे, जो सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं. जैसे कि there was this song चोर, काफी वायरल हुआ, ट्रेंड हुआ. अलग आसमान by अनु जैन, right. वो भी काफी ट्रेंड हुआ. तो you're asking me if I want them in movies? कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद आया है? Thinking. अभी तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है. बट ये तो क्वेश्चन नहीं था. आपने क्या पूछा पहले? कोई सॉन्ग आपको ऐसा पसंद आया है जो आप मूवीज में भी सुनना चाहोगे, या or you would like to collaborate with that particular singer? There's an artist, what is this song called? Shucks, what is it? I can remember the song, but I can't remember the artist. Sorry, I can't remember the name of the song.
जो आपने मेंशन किया, आई थिंक दे वर लिटिल मोर मेन स्ट्रीम नॉन फिल्म सॉन्ग्स, बट ऐसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो थोड़े और अंडरग्राउंड है, और उनके गानों को मैं बहुत पसंद करती हूँ. ठहरा आई थिंक इज द नेम ऑफ द सॉन्ग. वेरी कूल ट्रैक, वेरी कूल आर्टिस्ट. सो ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जिनके गानों को मैं सुनती हूँ. पंजाब इंडस्ट्री के भी बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं आई वुड लव टू कोलैबोरेट. आई माई सेल्फ ऑल्सो राइट इंडिपेंडेंट म्यूजिक, और मैंने काफी सिंगल्स रिलीज किए अपने ही. तो या आई थिंक, एंड आई डोंट थिंक the song coming in a film is validating. I think that popularity is no. So I don't think popularity is validation also. I think that मतलब एक गाने को 100 streams मिले या 100,000 मिले या 100 million मिले, गाना अच्छा होना चाहिए. और जैसे मेरा एक गाना है घर, जो मेरे कैटलॉग में नॉट सबसे कम बट काफी ऑन द लोअर एंड ऑफ पॉपुलैरिटी कह सकते हैं, बट टू मी इट्स वन ऑफ माई बेस्ट सॉन्ग्स. एंड जिन्होंने भी इस गाने को सुना है, दैट्स यूजुअली देयर फेवरेट सॉन्ग. सो आई थिंक it's the song that matters. It's the love that you put in the song that matters. All right, understood. So coming back to Ishq Wish Rebound, actually we didn't break a track, but music से हम बात ही कर रहे हैं, तो we'll talk about गोरे गोरे मुखड़े पे. So that song you have done with Badshah and Udit Narayan जी, जिनका ये song है like from the film सुहाग and अक्षय कुमार है. तो क्या आपने उनसे कोई tips मिली, and what was his reaction when you were doing गोरे गोरे मुखड़े का new version? उदित जी ना, उनके साथ तो उनकी इनफैक्ट आई थिंक ओरिजिनल वॉइस यूज किया गया है, तो आई डोंट थिंक उनको स्टूडियो में अलग से रिकॉर्ड किया गया था. आपकी कोई कुछ बात हुई उनसे? नहीं, एक्चुअली बादशाह, इनफैक्ट यहीं पे मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया, इसी स्टूडियो पे एट गॉडफादर. एक इवेंट पे मैं थी जहाँ पे बादशाह भी थे, और he caught hold of me. He was like, आज ही ये गाना रिकॉर्ड करना है, 1-2 लाइन ही है, अभी चलते हैं स्टूडियो. तो हम लोग इधर ही आए, और मैंने खुद को एक्चुअली रिकॉर्ड किया इधर बैठ के. एंड फिर रात को आई रिमेम्बर इट वाज लाइक 12:31 इन द मॉर्निंग जब मैंने रिकॉर्ड किया. फिर बादशाह भी अपने कुछ लाइंस रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि गोरे गोरे मुखड़े का जो गाना था वो तो हमने 5-10 मिनट में रिकॉर्ड कर लिया, बट कुछ 2-3 घंटे रात सुबह के 3 बजे तक हम लोग बैठ के गपशप कर रहे थे अबाउट सो मेनी वी वर लिसनिंग टू सो मेनी सॉन्ग्स, एंड इट वाज पूरा माहौल बन गया था अराउंड दैट रिकॉर्डिंग. सो आई थिंक हर गाने के पीछे ऐसे कुछ रैंडम स्टोरीज होते ही हैं, बट हम इधर बैठ के इसके बारे में बात करें तो यही दिमाग में आया कि यहीं पे बैठ के हमने गोरे गोरे रिकॉर्ड किया. अच्छा, आपने डेब्यू किया AR रहमान के साथ, आपका तमिल सॉन्ग था जो फर्स्ट सॉन्ग था, एंड ओवर द टाइम आपने अरिजीत के साथ काम किया, बादशाह के साथ काम किया, और भी बड़े बड़े सिंगर्स के साथ आपने काम किया, काफ़ी रिनोन फिल्म्स के लिए किया. बट इन लोगों के साथ आपने इतने एक्सपीरियंस लिया, फिर भी क्या आपका कभी कोई डिफिकल्ट फेस रहा करियर में? क्या आपने कोई चैलेंजेस फेस किया? आई डोंट नो, आई थिंक मैंने कभी सोचा नहीं कि कोई चैलेंजेस फेस किया कि नहीं, क्योंकि मेरी जो जर्नी रहा है इन म्यूजिक, इट्स बिन वेरी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक, एक्सीडेंटल ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं कुछ और ही कर रही थी. मैं डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी और उसके साथों साथ मैं अचानक फिल्मों में गाने लगी. तो आई थिंक जो भी रहा है, इट्स बिन एवरीथिंग हैज बीन पॉजिटिव फॉर मी, क्योंकि मैं जो गा रही हूँ फॉर अ लिविंग, ये तो मैंने कभी प्लान भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज, एवरी इंटरेक्शन हैज बीन प्लेजरेबल एंड हैज बीन ऑसम. ओके, आपने केसरिया सॉन्ग भी गाया फ्रॉम ब्रह्मास्त्र. जी, मैंने उसमें हार्मनीज रिकॉर्ड किया. करेक्ट. आपका एक क्या आपका एसोसिएशन है वो सॉन्ग के साथ, तो वो सॉन्ग को काफी ज्यादा प्यार भी मिला और ट्रोलिंग भी मिला. जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है, so how do you handle trolls? Honestly, I mean, there's a saying that any PR is good PR, as they say. No, but I think honestly, जब कोई आपको ट्रोल करता है, एक तो वो आपको, that person is putting the effort
to give you attention and to give you their thought. So I think उसका मतलब है एक तो उन्होंने गाना सुना सुना है है, right. तो गाने को तो अपना गाने का मतलब इंटेंट क्या होता है कि आप सुनो, हाँ. तो सुन तो लिया आपने, तो आई थिंक आप जो भी एनर्जी दे रहे हो गाने को बट आप दे तो रहे हो, तो आई थिंक दैट अप्लाइज टू ट्रोल्स एज वेल कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली पीपल डोंट मीन इट, लोग टाइम पास के लिए करते हैं, मैंने बहुत बार ये देखा है, एंड मीन इट या ना हो, आई थिंक सबको एवरीवन हैज देयर ओन ओपिनियन एंड इफ दे वांट टू गिव इट एंड ट्रोल यू दैट्स अप टू देम. मैं तो मोस्टली कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, और जब पढ़ती भी हूँ और अगर मैं कुछ ट्रोल देखती हूँ तो मैं ट्रोल को ट्रोल करती हूँ. आई थिंक द फाइट फायर विद फायर. तो कोई मुझे कुछ अजीब सा लिखता है तो मैं भी कुछ हंसी मजाक में कुछ अजीब लिख देती हूँ. ये अच्छा है. ट्रोल द ट्रोल. दिल पे नहीं रखना है. नहीं, बिल्कुल नहीं. सही है, अफेक्ट नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. राइट. सो अभी आई सी इश्क इज इन द एयर. इश्क विश्क रिबाउंड रिलीज हो रहा है. बॉलीवुड में सोनाक्षी सिन्हा इन लोगों की शादी हो रही है एंड रेनी सीजन है. इट इज द सीजन ऑफ लव. सो कोई एक आपका क्लोज पर्सन है लाइफ में जिनकी आपको याद आती है, यू वांट टू स्पेंड अ रेनी डेट विद देम, टॉकिंग अबाउट द इश्क, सो आई जस्ट गॉट अ थॉट ऑफ आस्किंग दिस. Well, rain for me is not just about love, I think, or like relationships. मेरे लिए बारिश is associated with everything. Like मेरी जिंदगी में सब जो important milestones होते हैं उस दिन बारिश होती है. अच्छा. तो मेरे लिए इतने सारे बड़े बड़े गाने जो रिलीज हुए हैं, हाँ. उसी दिन बारिश हुई. मतलब मेरे लाइफ में बारिश के साथ ये कनेक्शन है कि there's always been a very important life event जब बारिश हो रही है. कई अवार्ड्स भी मुझे ऐसे दिनों में मिले जब बारिश हो रही है. मेरा पहला गाना जो रिलीज हुआ था लेडियो तमिल में, उस दिन भी बारिश हुई थी. तो मेरा रिश्ता ऐसा है बारिश के साथ. सक्सेस वाला है. सक्सेस भी नहीं, जस्ट इम्पोर्टेंट डेज. टाइम यू ग्रो, राइट. बारिश फॉर मी इज जस्ट इम्पोर्टेंट डेज. yeah, it's just love and life and you know meaningfulness. वो है मेरे लिए बारिश. And you have worked a lot with Badshah, ठीक है. Right. So when do we expect a new collaboration of you and Badshah? हर बार मुझे जब गाना रिलीज होता है तो अगले गाने पूछते हैं लोग. Because we love No, to I think I don't know. You asked Badshah that. We have recorded more music. That's definitely there. तो unreleased गाने हमारे तो of course है. But इस साल I think I've had 2 releases with Badshah. One O Sajna, one गोरे गोरे. तो हमारा I think ये एक ट्रेंड तो बन ही गया है कि you know every year we have 2-3 songs dropping together. So yeah, I don't know when to expect the next one, but there's definitely more music with Badshah. We are excited. ठीक है. Before we wrap, we want to hear few lines from you. What do you want me to sing? Any of your song. Take just say इश्क विश्क रिबाउंड का song ले लो. That is trending now. Yeah, अभी जो ट्रेंड कर रहा है. तो thank you so much for all the love to इश्क विश्क, and this one's for you guys. इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार. I believe in love, love. I believe in प्यार. That was lovely to Thank hear you. live. Thank you. That was really lovely. Thank you so much. Thank you so much for Thank your you. time. Thank you so much. Thank you. And more success to you. Thank you so much.